Hello everyone, this is day 15 of your 30 days to crack CSAT program. Today we are starting with an important topic of logical reasoning, that is clocks. Questions based on clocks are very prominent. Last year नहीं पूछा गया है, it was more of paper to focus towards number system and the quants part, but we are expecting कि शायद इस साल वो रीजनिंग की तरफ ज़रा tilted हो, favored हो, तो ये बहुत important topic बन जाता है. Now, these are our planner for 30 days. We have covered till day number 14. आप बताओ अभी तक के सेशंस कैसे लगे आपको? क्या आपने कुछ सीखा? Yes or a no? है ना? We would be covering the remaining topics as well, plus a full length test 3 from our end, which is scheduled on 3rd of April. तो इसको miss मत करना. The details regarding this, the paper, the actual paper, the PDF, the full paper is also uploaded on our Telegram. You can check from there. Also, I'd request कि आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो PYQs को यहाँ से कवर कर सकते हो. This is one of the alternatives. Here we have discussed, go to this particular playlist. We have discussed each and every year, 2025, 2024, 23, 22, 21, going up to 2011. So all of these years paper, exact paper with detailed solution I have discussed. आप यहाँ से उसको cover कर सकते हो. Also, this is our prediction video wherein we covered 35 out of 53 questions in the year 2024 and 37 out of 51 questions in the year 2025. इनका डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन इस वाले पे आपको मिल जाएगा, आप इसको भी चेक कर सकते हो अपने एंड पे. मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज आवर लिंक टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम. ऑलराइट, नाउ दिस इज जस्ट टू हेल्प यू विद द कोर्स कंटेंट. whatever information we have, we want to share it with you. तो आप directly आपके लिए वो accessible हो. Any upcoming classes, anything that we have, so you are always notified with it if you join this Telegram. And these are certain courses. The foundation is only for 2027 students right now. Currently, we don't have a foundation course for 2026. We have a crash course, we have test series planner. Depending on your current scenario, you can opt for either of the two courses. आपको अगर डिस्कस करना है आप इस नंबर पे मुझे कनेक्ट करो एंड वी कैन सॉर्ट इट आउट कि आपके लिए क्या प्रेफर्ड ऑप्शन होना चाहिए. नाउ स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक. सबसे पहली चीज, हाउ मेनी हैंड्स डू वी हैव इन अ क्लॉक? 3 हैंड्स, द मिनट हैंड, द आवर हैंड एंड द सेकंड हैंड एज वेल. बट यहाँ पे वी डोंट यूजुअली गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेकंड हैंड, सो विल ट्राई टू साइड लाइन इट, है ना. विल जस्ट फोकस ऑन आवर हैंड एंड मिनट हैंड. जैसे क्लॉक स्टार्ट हो रहा है, अभी टाइमर बिल्कुल डे स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज द आवर हैंड, द शॉर्टर वन, और ये आपका मिनट हैंड है, लेट्स सपोज. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 12 o'clock. क्लियर है? मिनट हैंड इज यूजुअली द लॉन्गर हैंडल. नाउ इफ यू सी दिस क्लॉक, इट इज डिवाइडेड इनटू 12 मेजर सेक्शन. ईच सेक्शन इंडिकेट्स एन आवर. तो अगर मैं आवर की बात करूं तो टोटल आउट ऑफ दिस 360 डिग्रीज 12 major sections. So each section is actually of 30 degrees. आपको चेक करना, आप चेक करो. This is 30. This also is 30. This right here is again 30, and similarly going forward it is 360. Clear है? So 1 hour is actually a movement of 30 degrees. 1 hour. In 1 hour, the hour hand, in 1 hour, the hour hand moves 30 degree. Let's say it is 12 o'clock. आवर हैंड 1 घंटे बाद कहां पे जाएगा? यहां पे है, यहां पे जाएगा. So actually covers 30 degree. So what is the movement of our hand in 60 minutes? In 1 hour or 60 minutes? In 60 minutes, the hour hand moves 30 degree, the movement. Similarly, minute hands की अगर मैं बात करूं तो minute के लिए you have few more divisions, है ना, 5 major divisions that we have. So in total, if you count all of this, so it is basically 60 divisions, smaller divisions. So 360 upon 60 will actually give you 6 degrees. 6 डिग्री का क्या मतलब है समझना. अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये एक 6 डिग्री हो गया, ये दूसरा 6 डिग्री हो गया, ये तीसरा 6 डिग्री हो गया, ये चौथा हो गया, और ये रहा आपका 5वां 6 डिग्री. इफ यू काउंट ऑल ऑफ दिस 6 plus 6 plus 6 plus 6, it is actually 30 degrees. So 1 minute is basically the movement from here to here, and in 1 minute, what is the
movement of minute hand in 1 minute. In 1 minute, the minute hand moves 6 degree. क्या आप ये फॉलो कर पा रहे हैं? द आवर हैंड इन 1 hour or 60 minute moves 30 degree. This is the simplest of the simple concept regarding clock. Moving forward, hands of the clock, the hour hand and the minute hand. ये आपको क्या दिख रहे हैं? ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं क्या? आवर हैंड, मिनट हैंड, और इनके बीच का जो एंगल है दिस इज 180, पर्टिकुलरली स्ट्रेट. 6 o'clock बिल्कुल स्ट्रेट होगा. That is what we are trying to indicate here, the hands, 180 degree angle. So this happens once every hour, but in a span of 12 hours. When we look for clock, we only consider 12 hours configuration. In a span of 12 hours, it would be occurring 11 times and not 12 times. Why this is so? Simply because, अब एक इसको आप समझ लो तो इससे फिर आपको आइडिया लग जाएगा. अभी अगर ये 12 पे है, ये ऑपोजिट है, अभी ये आवर हैंड आपका यहां से यहां ही जा सकता है. आवर हैंड इन 1 hour कैन ओनली मूव फ्रॉम हियर टू हियर. इट कैन नॉट मूव एनीवेयर एल्स. द आवर हैंड कैन ओनली मूव फ्रॉम हियर टू हियर. द मिनट हैंड वुड बी मूविंग हियर. तो ये यहां पे कहीं एक टाइम पे बिल्कुल ही ऑपोजिट्स होंगे. ये क्लियर है क्या? तो बिटवीन 12 to 1 इट विल बी ऑपोजिट 1 time. From 1 to 2 it will again be opposite here. 2 to 3 opposite here somewhere. 3 to 4 it would be opposite here. 4 to 5 it would be somewhere opposite here. 5 to 6 it is exactly opposite at 6 o'clock. 5 to 6 it is exactly opposite at 6 o'clock. And 6 to 7 it was already opposite at 6 o'clock. तो ये जो टाइम फ्रेम है 5 to 7 का, इसमें होना चाहिए 2 बारी, बट इट इज ओनली हैपनिंग 1 टाइम. एंड इन रेस्ट ऑफ द आवर्स इट इज हैपनिंग वंस. सो इन अ टाइम फ्रेम ऑफ दीज 2 hours, the hands are opposite only once, and remaining every hour it is happening 1 time. Therefore it is not happening 12 times, it is happening 11 times. Same goes for the hands coinciding with one another. ये क्या कर रहा है? ये overlap कर रहा है, which means the angle is 0 degree. It is basically overlapping with one another exactly at 12 o'clock. तो अगर आप ये टाइम फ्रेम देखो, मैं 11 o'clock को ऐसे इंडिकेट करूंगा. 11 o'clock कुछ इस तरीके से मैं इंडिकेट करूंगा, हाँ या ना? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ या ना? 11 o'clock है. ये ओवरलैप कब करेंगे? 11 से 12 पे जाते हुए ये 12 पे ही ओवरलैप करेगा एग्जैक्टली. And when we consider 12 to 1, it has already overlapped at 12. So between 11 to 1, it will overlap only once, and rest of the hours, it will always overlap 1 time. So how many times will it overlap? It will overlap 11 times. Clear hai? In 24 hours, it is simply 12 hours plus 12 hours. So it is 11 plus 11, which is 22. 11 plus 11, which is 22. स्ट्रेट का मतलब है बोथ ऑफ दीज आर इंक्लूडेड. स्ट्रेट का मतलब वो अगर ऑपोजिट है तो भी स्ट्रेट है, अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो भी दीज आर स्ट्रेट. बोथ ऑफ दीज आर कंसिडर्ड, सो इट वुड बी 0 degree और 180 degree. So 11 times plus 11 times, it is 22 times in 12 hours, and 22 plus 22, which is 44 times in 24 hours. Clear hai? Next, the right angle. These are at right angle. When these are at right angle, these are at right angles means 90 degree, and we know these are at right angles. 12 घंटे के फ्रेम में ये 22 बारी होगा. क्यों होगा? Every hour it will happen 2 times. और एक टाइम फ्रेम आएगा 3 o'clock 9 o'clock वाला, उसमें ये एक एक बारी हो जाएगा, तो वहां पे ये रिड्यूस होगा. एंड दिस वुड बी 44 टाइम्स in 24 hours. I hope this is clear. Now moving forward, we have the next one, angle. How to find the angle between the two hands at any given point of time. Let's say अगर मैं 7:20 PM की बात करूं और AM की बात करूं, 7:20 कुछ इस तरीके से प्लॉट करोगे आप. ये 12 है, ये 1 है, ये 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. 7:20 will be plotted as this hand exactly at 4,
and the minute hand is exactly at 4. Agree. But the hour hand will be somewhat ahead. 7 पे तो नहीं होगा ना. The hour hand will be at 7 when it is 7 o'clock. 7 o'clock के बाद मिनट हैंड चलना स्टार्ट करेगा. आवर हैंड बैठा नहीं रहेगा. कोई किसी के लिए नहीं बैठा रहता है. राइट. नो वन वेट्स फॉर द अदर पर्सन. ये 7 o'clock पे एग्जैक्टली आवर हैंड यहाँ पे है. बट एज सुन एज द मिनट हैंड स्टार्ट्स मूविंग, द आवर हैंड विल ऑल्सो स्टार्ट टू मूव एट इट्स ओन पेस. ये उस पर्टिकुलर स्पीड से नहीं मूव करेगा, बट अपने पेस पे मूव जरूर करेगा. एंड इट वुड बी समवेयर अराउंड हियर. तो इसने ये कुछ डिस्टेंस भी कवर किया है. आपको ये भी कैलकुलेट करना है और आपको जो एंगल बताना है, दिस इज दिस एंगल. क्लियर है. हमेशा क्लॉकवाइज में एंगल पिक करना. सो दिस इज 30, दिस इज ऑल्सो 30, दिस इज ऑल्सो 30. एंड व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड इन 20 मिनट्स, क्योंकि अभी 20 मिनट हुए. इन 60 मिनट्स आवर हैंड मूव्स 30 degree. So in 1 minute it will move 30 by 60. In 20 minutes it will move, simple unitary method, 30 by 60 into 20, 10. तो ये जो कवर किया है ये बेसिकली 10 डिग्रीज कवर किया होगा. और सोच के देखो, अगर 20 मिनट पे 10 डिग्रीज कवर करेगा, अनदर 20 मिनट्स पे 10 डिग्रीज मोर एंड अनदर 20 मिनट्स विच इज 60 मिनट्स टोटल. 10 10 10, यू आर डन विद इट. क्लियर है. तो ये टोटल कितने हो गए? ये टोटल आपके लिए हो गया 100 डिग्री. दिस इज अ लॉजिकल अप्रोच टू लुक एट सच प्रॉब्लम्स. मैं बोल रहा हूँ गो विद द फॉर्मूला, कभी गलत नहीं होगा. अगर फॉर्मूले से कर लो तो और आसान है. क्या करना है? बस टाइम को प्लॉट करना है. टाइम को प्लॉट करो. 60 इंटू आवर्स विच इज 7 माइनस 11 इंटू मिनट्स विच इज 20 बाई 2. एंड दिस इज मॉड. मॉड का मतलब है अगर नेगेटिव आ रहा है उसे इग्नोर कर देना. चेक करो. 7 6 42, 420 माइनस 220 अपॉन 2, इट इज 200 बाई 2 विच इज 100 डिग्रीज. डन. या तो आप इस मेथड से जाओ या फिर दूसरे वाले से कैलकुलेट करो, बट कैलकुलेट तो करो. देखो क्या आ रहा है, किस तरीके से देखना इन क्वेश्चंस को. क्लियर है. मूविंग फॉरवर्ड, दिस वाज अ क्वेश्चन इन द ईयर 2024. व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 425? You know the angle formula. 60 into hours minus 11 into minutes by 2 mod. So it is 60 into 4 minus 11 into 25 by 2. 60 into 4 कितने होते हैं? 240. 11 into 11 into 25. 25 into 10 कितने होंगे? 250. एक और 25 उस पर लगा दो तो 250 और 25 is basically 275 by 2. 75 और 40 के बीच में कितने का गैप? 35 का गैप by 2 which is 17.5 degrees. ऑप्शन सी इज योर करेक्ट फिट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड. बेसिक मेथड पे भी आप काम करोगे, आपका आंसर जरूर आ जाएगा. कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है. मूविंग फॉरवर्ड, आप इन टाइमर्स पे take this as question number 1, this is question number 2 and this is question number 3. Tell me the angle between the hour hand and minute hand at these respective times. I'll give you 30 seconds to comment these 3 questions. Please make it quick. What do you think is the correct answer? 9:30, 2:30 and 3:40. आई होप आपने इसको कमेंट कर दिया है, आपने सॉल्व भी किया है. अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूं. चलो आगे बढ़ते हैं. Question number 2, 2024. How many times the hour hand and the minute hand coincide in a clock between 10 a.m. to 2 p.m.? 10 a.m. to 2 p.m. मतलब it is exactly 10, 11, 12, 1, 2. मैं नीचे नहीं बना रहा हूँ, चलो बना ही लो यार. 6, 5 and 4. 10 o'clock से 11 o'clock पे एक बारी कंसाइड करेगा. 11 से 12 पे वो कंसाइड करेगा जरूर, बट दैट टाइम वुड बी एग्जैक्टली 12 o'clock. तो 12 से 1 पे वापस से फिर ये कंसाइड नहीं करेगा, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी कंसाइडेड एट 12. सो इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 11 to 1 in 2 hours,
it will only coincide one time. In 10 to 11, it will coincide one time. 1 to 2, it will again coincide one time. So in a gap of 4 hours, it should have ideally coincided 4 times, but you know why it is coinciding 3 times. वो जो हमने इनिशियली डिस्कस कर लिया कॉन्सेप्ट यहाँ पे, आई होप आपने इसको फॉलो किया है. जो मैं इनिशियली इतना टाइम लेके आपको समझा रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, कब आपको केयरफुल रहना है, आपको बस इन पॉइंटर्स पे केयरफुल रहना है. ये वाला अगर आ रहा है कंसाइड के केस में, ये वाला टाइम अगर इंक्लूड हो रहा है ओवरलैपिंग के केस में, तो इन दो केसेस पे आप जरा केयरफुल रहना, बाकी आपको ज्यादा सोचना नहीं है. A question from the year 1997. The number of times in a day the hour hand and the minute hand of a clock are at right angle. In 20 or 12 hours, this happens 22 times. So in 24 hours or in a day, it will happen 22 plus 22, which is 44. Option A. Factual question. सोचना ही नहीं है ज्यादा, आगे बढ़ो. Between 6 and 7, the minute hand of a clock will be ahead of the hour hand by 3 minutes at which of the following? Take it as a homework. अब या इसको सोचने की बात है. देखो मैं सिंपल आपको बता रहा हूं, 3 मिनट्स का क्या मतलब होगा. 3 मिनट्स का अगर गैप हो रहा है तो बेसिकली 6 डिग्री, 6 डिग्री और 6 डिग्री की तो बात हो रही है. जब मैं 5 मिनट बोलता हूं तो मैं मान लो अगर 12 पे हूं तो मैं 1 पे जाऊंगा मिनट हैंड, तो ये 5 मिनट इज एक्चुअली 30 डिग्रीज, 15 मिनट इज एक्चुअली 90 डिग्रीज. सिमिलरली 3 मिनट इज एक्चुअली 18 डिग्रीज अपार्ट, है ना. अब टाइम्स गिवन है आपके पास, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, आप नॉर्मली टाइम को प्लॉट करो. 6:15 अगर प्लॉट करोगे तो ये मिनट हैंड इस तरफ जाएगा, आवर हैंड कुछ यहां पे रहेगा. क्या ये गैप 18 डिग्री से ज्यादा नहीं है? बिल्कुल ज्यादा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता. क्या 6:18 पे ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी बहुत बड़ा एंगल है. 6:36 पे चेक करते हैं. This is 6, this is 7, this is 8. 6:36 means the minute hand will be at 36. This is 35, so it will be at 36. The hour hand must have moved some part. वो मूव किया होगा और वो यहां पे होगा. ये एंगल 18 डिग्री के आसपास जरूर है. आप चाहो तो पूरी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, बट दिस इज योर करेक्ट आंसर. व्हाई? बिकॉज 6:48 अगर आप प्लॉट करोगे तो 6:48 would be plotted something like this. This is 6, this is 7, this is 8 and this is 9. 48 का मतलब है ये मिनट हैंड यहां पे है और आवर हैंड तो यहां पे होगा. ये एंगल, क्या ये 18 डिग्री का एंगल है? बिल्कुल भी नहीं है, तो दिस इज अगेन रॉन्ग. Just by looking at the options, you can actually eliminate so many things. But 3 मिनट क्या है वो आपको आना चाहिए. 3 मिनट का मतलब है 18 डिग्रीज. An accurate clock shows 8 o'clock in the morning. Throughout how many degrees will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock? 8 o'clock कुछ ऐसा दिखेगा. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 and 5. 8 o'clock पे अभी है. When the hour hand will rotate and shows the time 2 o'clock, तो आवर हैंड इस तरीके से जाएगा और फिर आवर हैंड ऐसा हो जाएगा. तो व्हाट इज दिस मूवमेंट? दिस मूवमेंट इज बेसिकली 180 डिग्रीज. यस और नो? ऑप्शन डी. दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2000. ये सारे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सिमिलर एंड पे कॉन्सेप्ट्स, इनसे आप कॉन्सेप्ट सीखो. एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया, बस उस पर बात कर लेते हैं. जैसे अभी हमने बात करी कि इन 1 आवर the hour hand and the minute hand coincided over one another, and also they are opposite with one another in 1 hour just one time. But अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, what exact time given to particular minutes or seconds, कि अगर मैं बोलूं कि 3 से 4 के बीच में ये कंसाइड करेंगे तो किस एग्जैक्ट टाइम पे कंसाइड करेंगे? टाइम ऑफ कंसाइडिंग और ओवरलैपिंग बताओ. तो ये जो एक्यूरेसी इस पे हमें चाहिए, उसके लिए वी हैव टू लुक एट द फॉर्मूला.
बात समझ में आ रही? क्या हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे? We are trying to find the time of overlapping, the time at which they are opposite, the time at which the hands of the clock are at right angle, all of those time. And this time is generally given in minutes. इसको जब आप सॉल्व करते हैं, this is A1 A2 क्या है मैं बताऊंगा, आप सॉल्व करोगे, इसका जो रिजल्ट आएगा that will be after these many minutes, कि इतने मिनट के बाद ऐसा होगा. ठीक है, जैसे मैं बोलूं 30, तो आप क्लॉक का टाइम स्टार्ट करो, उससे 30 मिनट आगे चले जाओ, ऐसा कुछ. ठीक है, देखते हैं. A1 क्या है यहां पे? A1 इज बेसिकली एंगल 1. तो अगर मैं एक टाइम ले लूं कि मुझे शो करना है बिटवीन, सो यहां पे वी आर ट्राइंग टू डिस्कस कि एट व्हाट एग्जैक्ट टाइम, लेट्स से बिटवीन 3 to 4, the hands of the clock would coincide with one another. कि आवर हैंड एंड मिनट हैंड कौन से एग्जैक्ट टाइम पे कंसाइड करेंगे, ओवरलैप करेंगे. उसके लिए दिस इज द फॉर्मूला दैट वे, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद आवर कैलकुलेशन, एंड ओनली फॉर दिस एग्जैक्ट रीजन वी नीड द फॉर्मूला. सो व्हाट इज A1 हियर? A1 is actually the angle 1 or angle at the start of the hour. At the start of the hour मतलब at 3. तो at 3 what is the angle? 90 degree. कैसे निकालना है? 3 into hours which is 30 degree. Hours into 30 degree, यही करना. 4 o'clock पूछेगा 4 into 30. 5 o'clock पूछेगा 5 into 30. 6 o'clock पूछेगा 6 into 30. 9 o'clock पूछेगा 9 into 30. ये ध्यान रखना. एंगल 2 क्या हो सकता है? अगर एंगल 1 है स्टार्ट ऑफ द आवर, तो एंगल 2 क्या हो सकता है? एंगल 2 इज द डिजायर्ड एंगल. आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए दैट द हैंड्स ऑफ द क्लॉक शुड ओवरलैप और कंसाइड. देयरफॉर व्हेन दे कंसाइड, द हैंड्स और द एंगल बिटवीन देम इज 0 degree. So if I use this formula, it would be 90 degree plus minus 0 degree into 2 upon 11, and the answer that I would be getting is exactly in minutes. So this is 90 into 2 by 11 और दिस इज 180 by 11. अब जरा इसे सिंप्लीफाई करते हैं. वन टाइम इट विल गो अप टू 11, देन वी आर लेफ्ट विथ 70, सो इट विल गो अप टू 6, सो विल गो 66, वी आर लेफ्ट विथ 4 by 11 मिनट्स. ये टाइम क्या इंडिकेट कर रहा है? कि 3 से 4 के बीच में 3:16 पे एट 3:16 आफ्टर दीज मेनी मिनट्स, सो 3:16 4 by 11, the hands of the clock will exactly overlap with one another. अगर आपके सामने क्लॉक है, आप इस टाइम को प्लॉट करने की कोशिश करो, आप देखोगे exactly at this point the hands are overlapping. Now why we need to do this up to these many precision? Because the option that you would be seeing for such question is usually 3:16 7 by 11, 3:16 4 by 11, 3:16 5 by 11, 3:16 8 by 11, ऐसा कुछ आ जाए. क्लियर है? Now, moving on. Consider the following statements. Between 3:16 and 3:17 p.m., both the hour hand and the minute hand coincide with one another. अभी हमने कैलकुलेट भी जो किया था वो 3 to 4 p.m. के लिए किया था. We know this will coincide with one another, the hour hand and the minute hand. At what exact time? 3:16 4 by 11. So between 3:16 and 17, will they coincide? Yes, this is absolutely true. अगर आपको ये डायरेक्टली आ रहा है, आप क्या करोगे? आप लिखोगे 3:16 और 3:17 पूछ रहा है, मतलब द आवर गैप इज 3 to 4, तो 3 से 4 के बीच में प्लॉट करना है. एंगल 1 इज बेसिकली एट 3, एंगल 2 इज बेसिकली योर डिजायर्ड एंगल. दैट्स इट. एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2 इंटू 2 by 11. वाई वी हैव अ प्लस माइनस? बिकॉज बहुत सारे केसेस में यू आर गेटिंग टू रिजल्ट. जैसे अगर मुझे चेक करना है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम एट 90 डिग्री, है ना, तो डिजायर्ड एंगल मेरे लिए 90 होगा, तो वो 2 बार अकर होता है, तो ध्यान देना, इसलिए वो प्लस माइनस है. नाउ बिटवीन 4:58 p.m. and 4:59 p.m., that is a gap of 1 minute, both minute hand and seconds hand coincide with one another. Definitely true. एक मिनट में सेकेंड हैंड क्या है? टिक 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 टिक. 60 seconds is 1 minute. तो उस 60 seconds पे पर्टिकुलरली वो एक बार तो कंसाइड करेगा ही. 100% दे विल कंसाइड.
So this also, in every 1 minute, the minute hand and the seconds hand will always coincide with one another. Both of these statements are absolutely true. This is a question from the year 2022. चलो next देखते हैं. At which one of the following times do the hour hand and the minute hand of a clock make an angle of 180 degree with one another? ठीक है, और टाइम क्या गिवन है? 7, 7, 5, 7, 7, 5, 7, 10. इट मीन्स आई एम लुकिंग एट अ टाइम ऑफ 7 to 8. 7 से 8 के बीच में एक बार तो जरूर होगा. कब होगा? चेक करो. एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2 इंटू 2/11. ओके, सो वी नो एंगल 1 क्या होने वाला है मेरे लिए. एंगल 1 इज एट द स्टार्ट, सो एट 7 क्या होगा? 7 इंटू 30 डिग्री विच इज 210. एंगल 2 क्या है? डिजायर्ड इज 180 डिग्रीज. सो दिस बिकम्स 210 प्लस माइनस 180 इंटू 2/11. और यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व होगा. प्लस माइनस प्लस करो तो इट वुड बी बेसिकली 210 प्लस 180 is basically 390. 390 2/11 एंड माइनस करोगे अगर तो ये आएगा 30 इंटू 2/11. ये क्या बनेगा? ये जो टाइम देगा आपको ये बेसिकली 780/11 देगा. जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 11 से अगर सिंप्लीफाई करोगे इसे तो ये 7 टाइम्स जा रहा है, फिर क्या आ रहा है? 10, so it will go 1 टाइम. फिर दिस एक्चुअली इंडिकेट्स कि मैं बेसिकली 70 मिनट्स पे जा रहा हूं. 70 मिनट्स एक घंटे के टाइम फ्रेम में, तो ये 70 मिनट्स पे चला गया, मतलब मैं बाहर चले गया ना उस टाइम फ्रेम से. तो इस वाले पॉसिबिलिटी को मुझे पूरी तरीके से इग्नोर करना है. और ऐसे भी आपका आंसर सिर्फ एक ही आएगा. व्हाई? बिकॉज दिस हैपेंस एग्जैक्टली 1 टाइम. तो आप इसको जब सॉल्व करोगे आपका रिजल्ट सही आएगा. चेक कर लो. 60/11 which can be written as, it will go 5 times, we are left with 5/11 minutes. At 7, no. Between 7 and 7:05, no. At 7:05, no. Between 7:05 and 7:10, definitely yes, because ये क्या आ रहा है? 5/15. मतलब वो 7:05 से थोड़ा ज्यादा है. तो 7 और 7:05 के बीच में तो नहीं है, 7:05 पे भी नहीं है, उससे जरा ज्यादा है. तो इस प्रिसीजन के साथ अगर आपको सॉल्व करना है तो ये सही तरीका है. ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये क्या इंडिकेट, ये क्यों इसको इग्नोर किया, ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज दिस इज नॉट गिविंग अस अ टाइम विच इज इन दिस रेंज. दिस इज नॉट इन दिस रेंज ऑफ 1 आवर. दिस इज बियॉन्ड 60 मिनट्स. तो बियॉन्ड 60 मिनट्स में 7 to 8 में कंसिडर ही नहीं करूंगा, तो मैं इस केस को इग्नोर कर दूंगा. नेक्स्ट, how many seconds are there in x weeks, x days, x hours, x minutes and x seconds? Take it as a homework. Please do this. सिंपल क्वेश्चन है. डाउट आएगा इस क्वेश्चन को आप सर्च करो. मेरा ही डिटेल्ड सोल्यूशन आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप इसे कवर कर लेना. बट आई गेस आप इसे सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगेन अ क्वेश्चन ऑन फॉल्टी क्लॉक. पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को अगर सर्च करोगे आपको आंसर मिल जाएगा. बट देखो कि क्या आप इसको अप्लाई कर पा रहे हो, इसके कॉन्सेप्ट्स को सही से, हाँ या ना. फॉल्टी क्लॉक में ये 2017 का क्वेश्चन है. फॉल्टी क्लॉक में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं. पहला, इफ द क्लॉक इज रनिंग फास्ट और इट इज रनिंग स्लो. नाउ join our telegram channel for any course related update, for FLT3 discussion. FLT3 PDF as well is provided on this telegram. Join कर लो जितने लोगों ने join नहीं किया है. All right, thank you everyone, take care, bye bye. These are certain courses that you can enroll if you wish to enroll. 2027 के लिए foundation course है सिर्फ. The enrollment has already been started. For anyone who wants to join right now for this year's, may get in touch with us on this WhatsApp number. Thank you everyone, take care. Happy learning.